जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। I hope you all are safe and fine. So we are going to start with the lecture number 16 of therapeutic exercises and techniques 2. In the last lecture, we have learned about the normal anatomy and orthokinematics of hip joint. We have discussed about the hip joint and the gait, the phases of the gait cycle, and the amount of movement needed at the hip joint during the gait, during the stance phase, and during the sprint phase. We have discussed that in detail कि कितनी amount of movement required होती है hip joint के ऊपर during stance phase, during the sprint phase, and during these stages. ठीक है, that is the pre-swing, mid-swing, and the late swing phase. Okay, so we are going to start with our today's lecture. I am going to start sharing screen with you people for the PowerPoint presentation. So, first of all, we are going to start with the pathological conditions of the hip joint, and then we will discuss about the surgery that are going to perform at the hip joint. And this first one is the hip imbalances, the muscular imbalances, and their effect on the hip joint. So, whenever a patient, whenever an individual is having a bad posture or a poor posture, he or she may develop a hip pain, knee pain, or ankle pain, or may develop lumbar pain as well. So, the hip imbalances are whether it is an imbalance in the strength, whether there is an imbalance in the endurance of the muscles crossing the hip joint, whether there is a length tension relationship, whether whether they are in stretch tightness or whether they are in stretch weakness. Okay, uh, they are going to have a bad effect और they are going to produce a pain at the hip joint. ठीक है, कहना क्या चाहते हैं कि मसल्स के जितने भी मसल्स हैं जो हमारे हिप जॉइंट को क्रॉस कर रही हैं, अगर इन मसल्स में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाए, किस चीज़ का स्ट्रेंथ का इम्बैलेंस क्रिएट हो जाए या एंड्योरेंस का इम्बैलेंस क्रिएट हो जाए या फिर इनका लेंथ टेंशन रिलेशनशिप खराब हो जाए, तो दे आर गोइंग टू चेंज देयर मैकेनिक्स. ठीक है, दे आर गोइंग टू चेंज देयर मैकेनिक्स ऑफ कंट्रैक्शन. और जैसे जैसे ये मैकेनिक्स चेंज होती जाएगी, इट विल progress from normal mechanics to pathomechanics, and eventually the patient will experience a pain, or the individual will experience a pain, whether in the hip joint, whether in the knee joint, or whether in the ankle joint, or whether in the lumbar spine as well. ठीक है, hip की जो pain है, it can radiate in both directions. It can radiate from the hip joint towards the lumbar spine as well, or it can radiate from the hip joint towards the knee joint as well. Okay, so there are both radiation patterns for the hip joint as well. Now, the muscular imbalances eventually causes soft tissue injuries or joint dysfunction. Okay. Now we are going to study one by one the muscular imbalances most commonly present around the hip joint. The first one is short tensor fascia lata or the gluteus maximus muscle. Okay. This shortness of tensor fascia lata and gluteus maximus is usually associated with the anterior pelvic tilt posture, with the slouch posture, with the flat back posture. ठीक है? So whenever a patient is diagnosed with these postures, ठीक है, you might came to find that there are
There are short tensor fascia lata and short hip extensors to the gluteus maximus. ठीक हो गया? Now, and the second muscular imbalance is going to develop is the dominance of the hip flexor muscles, the tensor fascia lata, the sartorius muscle, and the rectus femoris on the iliopsoas. Whenever the iliopsoas is unable to perform hip flexion, this primary action of iliopsoas, if the primary action of iliopsoas has been compromised, the tensor fascia lata, the rectus femoris, and the sartorius, they override the iliopsoas muscle and start performing its function. So, with the dominance of these muscles, there will be a dysfunction at the hip joint as well as at the knee joint, as rectus femoris and the sartorius muscle. Both of these muscles they cross both the hip joint as well as the knee joint, so they are more likely to produce dysfunction at the hip joint and the knee joint. The third one is the dominance of tensor fascia lata over the gluteus medius muscle. As tensor fascia lata and gluteus medius are able to perform hip abduction, the primary action of hip abduction is performed by gluteus medius if it is weak. So the tensor fascia lata dominates the gluteus medius muscle, ठीक and starts performing the action of hip abduction. So whenever there is overriding of tensor fascia lata over the gluteus medius, we can find that there will be a lateral pain, the lateral pain from the thigh till the knee joint. ठीक है? So this is usually associated with the dominance of or overactivity of tensor fascia lata. ठीक हो गया? उसके बाद the next one is dominance of the hamstring muscles over the gluteus maximus. Now the proactivity, the action of gluteus maximus or the primary action of hip joint extension is usually performed by gluteus maximus muscle. Whenever the gluteus maximus muscle becomes weak, it is overridden by the activity of hamstring muscles. Okay. What happens next? The range of hip flexion decreases whenever the hamstrings are in a tightened position or in or are performing overactivity. Now, when there is a decrease in flexion with hip joint flexion, ठीक है, there will be a compensatory movement of increased spinal extension, spinal flexion. ठीक है, जो आपकी लंबर स्पाइन है, ठीक है, वो आपकी कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स के थ्रू क्या करेगी, फ्लेक्शन में जाना शुरू कर देगी. ठीक हो गया? As a result of this, there will be an increased tension on the iliotibial band, ठीक है, with associated trochanteric pain. ठीक है, ग्रेटेड ट्रोकेंटर लेटरल साइड के ऊपर होता है, वहां पर आपको पेन फील हो सकती है, या फिर नी पे आपको पेन फील हो सकती है ऑन द लेटरल साइड. ठीक हो गया? उसके बाद कहता है जी these muscles imbalances are usually associated with and there are also causes and dysfunctioning of the muscles such as the knee extensors that are quadriceps. So the hamstrings they are going to cause an enormous number of dysfunction. First, it is going to decrease the hip flexion movement. ठीक है, the range of hip flexion is going to decrease as a result of overactivity of hamstring muscles. ठीक है, when they are overriding the gluteus maximus as a primary movement of hip extension. Secondly, the lumbar spine flexion is going to increase as a compensatory function as a compensatory function in response to decrease hip joint flexion. जब जब हिप जॉइंट की फ्लेक्शन डिक्रीज होगी लंबर स्पाइन की फ्लेक्शन इंक्रीज होती जाएगी.
ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है कि जी देयर विल बी एन इंक्रीज टेंशन ऑन द इलियोटिबियल बैंड with greater with a pain on the greater trochanter of the femur or either along the knee joint on the lateral side. ठीक है। Now it causes an imbalance of the quadricep muscles as well that are acting as a knee extensors. ठीक हो गया। The next one is the use of lateral trunk muscles for hip abduction. ठीक है, whenever the hip abductors are weak, the individual can have a compensatory function of hip abduction by laterally bending the trunk. ठीक है, whenever a patient is going to perform hip abduction by laterally bending, there will be an excessive stresses on the lumbar spine, and as a result, there will be a chance of either a joint dysfunction or a disc dysfunction. ठीक हो गया. So these are the effects of the different muscles when they are when there is an imbalance in them. ठीक है, they are going to cause different stresses at the hip joint, at the knee joint, or at the lumbar spine. Now the hip and the gait. During the normal gait cycle, we have learned all about it. The hip goes through a total range of 40-degree flexion. ठीक है, 40 मैंने लास्ट टाइम जो आपको पढ़ाई थी that was ठीक है, the 40 degree of flexion is actually सर the 10 degree of extension is also included. सर आपकी आवाज नहीं आ रही। यस सर, आपकी ठीक आवाज है, नहीं आ रही। the 10 degree at the terminal सर आपकी 10 आवाज there नहीं will आ be a रही। 10 degree of extension at the terminal. बच्चों, सर सर अभी आवाज नहीं आवाज आ नहीं आ रही रही। है आपकी। बीच में से बहुत ज्यादा बेटा डिस्टॉर्शन हो रही है। पहले आवाज आ रही थी बच्चों? पहले आ रही थी और बस ये 2 मिनट सर पहले अब से ठीक आवाज आ नहीं आ रही है। रही। सर अब ठीक। डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा है साउंड में। जी बच्चों, आप देखो अब आवाज आ रही है। जी सर अब आ रही है। सो लेट्स स्टार्ट द गेट साइकिल। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है ना? इफेक्ट ऑफ मस्कुलर इम्बैलेंसेस ऑन द हिप जॉइंट, ऑन द नी जॉइंट और ऑन द लंबर स्पाइन। यहाँ तक बात की समझ आ गई है? यस सर। यस सर। सो सर एक बात पूछनी है। जी सर जो मसल टाइट होते हैं और जो मसल वीक होते हैं, सर यहाँ पे कंपनसेटरी मैकेनिज्म मतलब ये है कि जो टाइट मसल है उनका एक्शन जो है वो डोमिनेट हो जाएगा, यानी वो वाला एक्शन परफॉर्म करेंगे फिर जी जी जी, जो मसल्स वीक हो जाएंगे ना वो इनएक्टिव हो जाते हैं, और जो मसल्स टाइट होते हैं वो उन इनएक्टिव मसल्स को ओवरराइड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है सर। ठीक है। So the next is the hip and the gait. ये हम लोग मैं आप लोगों को लास्ट टाइम पढ़ा चुका हूँ कि जी हिप जॉइंट किस किस मूवमेंट में कैसे कौन सी हिप जॉइंट की मूवमेंट होगी ड्यूरिंग डिफरेंट फेजेस ऑफ द गेट साइकिल। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा इसको इलेबोरेट किया हुआ है। नाउ द hip joint totally moves 40 degree of flexion during the gait cycle. टोटल जो है 40 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन जो है वो परफॉर्म होती है एट द हिप जॉइंट ड्यूरिंग अ नॉर्मल गेट साइकिल। ठीक है, अब इसमें से ये जो 40 डिग्री है हम इसको डिवाइड करें तो 10 डिग्री टर्मिनल एक्सटेंशन होती है। ठीक है, और 30 डिग्री जो है वो आपकी फ्लेक्शन होती है मिड स्विंग फेज में और इनिशियल
pelvic tilt भी होती है, हिप एबडक्शन भी होती है और हिप एडक्शन भी होती है। सर ठीक है आपकी आवाज़ फिर डिस्टॉर्ट होने लग गई है। जी बच्चों, अब आवाज आ रही है? अब आवाज ठीक आएगी। मेरा यहाँ पे इंटरनेट का इशू चल रहा था, अब ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब आवाज आ रही है? जी सर। सर ठीक ये है दोबारा बता ना। दें। अच्छा, नाउ हमने पहले बात की कि हिप के ऊपर फ्लेक्शन हो रही है और हिप के ऊपर एक्सटेंशन हो रही है ड्यूरिंग द नॉर्मल फेजेस ऑफ द गेट साइकिल। ठीक है, 10 डिग्री ऑफ एक्सटेंशन हो रही है टर्मिनल स्टैंस फेज में और 30 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन हो रही है ड्यूरिंग द मिड स्विंग फेज और द इनिशियल कॉन्टैक्ट फेज। नाउ द सेकंड पॉइंट इज कि जी आपके हिप जॉइंट के ऊपर हिप की एबडक्शन भी हो रही है और हिप की एडक्शन भी हो रही है। टोटल कितनी हो रही है? 15 डिग्री हो रही है। इन दोनों को मिलाकर बात करो, हिप की एबडक्शन भी, हिप की एडक्शन भी। वो कहते हैं कि 10 डिग्री एडक्शन होती है जब इनिशियल कांटेक्ट होता है, जिसको हम लोग हील स्ट्राइक बोलते हैं। ठीक है, हील स्ट्राइक जो स्टेज है ऑफ द गेट साइकिल, उसमें आपकी 10 डिग्री ऑफ एडक्शन होती है और 5 डिग्री ऑफ एबडक्शन होती है तब जब इनिशियल स्विंग फेज होता है। ठीक है, समझ आ गई बात की? फिर वो कहता है हिप जॉइंट के ऊपर रोटेशन भी होती है, वो एक्सटर्नल रोटेशन हो, वो इंटरनल रोटेशन हो। ठीक है, कहते हैं वो टोटल होती है आपके 15 डिग्रीज की। हिप एबडक्शन एडक्शन भी 15 डिग्रीज की होती है, हिप एक्सटर्नल रोटेशन और इंटरनल रोटेशन भी 15 डिग्रीज की होती है। ठीक है, वो कहते हैं कि इंटरनल रोटेशन 15 डिग्री की होगी, मैक्सिमम होती है जितनी अलाउ पॉसिबल हो। मैक्सिमम इंटरनल रोटेशन होती है एट द एंड ऑफ द लोडिंग। ठीक है, एट द एंड ऑफ द लोडिंग का मतलब क्या है कि आपका जो फेज है वो आपका पुश ऑफ फेज है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द लोडिंग। ठीक है, पुश ऑफ फेज है। ठीक है, मिड स्टांस से जो नेक्स्ट फेज होता है उसमें आपकी इंटरनल रोटेशन होती है पीक, मैक्सिमम होती है। इसी तरीके से मैक्सिमम एक्सटर्नल रोटेशन होती है ड्यूरिंग द प्री स्विंग फेज। ठीक है, मतलब जो स्विंग फेज से पहले वाला फेज है उसमें आपकी मैक्सिमम एक्सटर्नल रोटेशन होती है। ठीक हो गया? ये मिड स्टैंस के बाद जो आपका फेज है दैट इज द पुश ऑफ फेज। ठीक है, उसमें हो रही है और पुश ऑफ फेज के बाद जो आपके पास प्री स्विंग का फेज है, ठीक है, उसमें आपके पास एक्सटर्नल रोटेशन हो रही है। ठीक हो गया? अब वो कहते हैं कि हिप जॉइंट, अब देखें आपका ट्राई एक्सियल जॉइंट है ड्यूरिंग द गेट साइकिल भी, ड्यूरिंग द गेट फेजेस भी आपका हिप जॉइंट तीनों डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को यूज करते हुए मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है, तीनों प्लेन्स को, तीनों एक्सिस को यूज करते हुए। वो कहते हैं कि अगर इनमें से कोई भी मूवमेंट लॉस हो जाए तो आपका गेट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब वो कहते हैं कि अगर हिप फ्लेक्शन लॉस हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा? वो कहते हैं देयर विल बी अ पोस्टीरियर लर्च ऑफ द ट्रंक। ठीक है, सही है। अब वो कहते हैं पोस्टीरियर लर्च क्या है ट्रंक की? ठीक है, पोस्टीरियर लर्च ये है कि पेशेंट जो है वो पीछे की तरफ फॉल करेगा, लाइक something is falling behind the patient whenever he is going to initiate the swing phase। ठीक हो गया? अगर हिप फ्लेक्सर्स क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएगा या हिप फ्लेक्सर्स की जो एक्टिविटी है वो लॉस हो जाएगी, तो देयर विल बी अ पोस्टीरियर लर्च दैट समथिंग इज फॉलिंग आउट ऑफ हिज बटक। ठीक है, दैट इज एक्चुअली द मैकेनिक्स। ठीक है, द डिफरेंट अदर मसल्स दैट आर गोइंग टू इनिशिएट द स्विंग फेज, जब हिप फ्लेक्सर जो हैं वो काम सही नहीं कर रहे होंगे। तो अगर वो कहता है हिप फ्लेक्सर्स का कॉन्ट्रेक्चर बन जाए तो आपकी जो कंप्लीट एक्सटेंशन है स्टैंस फेज की, ठीक है, वो आपकी क्या हो जाएगी? लॉस होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब आपकी जो स्ट्राइड लेंथ है, स्ट्राइड लेंथ का मतलब क्या है कि आपकी जो नॉर्मल लेंथ है फ्रॉम द heel contact of the left foot, the distance from the heel contact of the left foot to the heel contact of the right foot। ठीक है, ये आपकी टोटल स्ट्राइड लेंथ बनती है। ठीक है, ये जो है दैट इज द
that is actually नहीं, this one sorry, this one is a step length, ठीक है, कि आपके लेफ्ट फुट की हील कांटेक्ट से डिस्टेंस लेके राइट फुट की हील कांटेक्ट का जो डिस्टेंस है दैट इज अ स्टेप लेंथ, ठीक है। लेकिन लेफ्ट फुट ने जब हील स्ट्राइक की विद द फुट, ठीक है, फिर राइट फुट ने हील स्ट्राइक की, ठीक है, और फिर जब लेफ्ट फुट ने आगे जाके हील स्ट्राइक की, तो लेफ्ट से लेफ्ट का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग स्ट्राइड लेंथ बोलते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि जिस साइड के हिप फ्लेक्सस का कॉन्ट्रैक्चर होगा उस साइड की स्ट्राइड लेंथ छोटी हो जाएगी, ठीक है। वेदर इफ इट इज ऑन द राइट साइड, ठीक है, द स्ट्राइड लेंथ विल बी डिक्रीज्ड ऑन द राइट साइड। if there is a decrease of if there is a contracture of hip flexors on the left side, there will be a decrease in stride length on the left side, ठीक है। अब वो कहता है कि इसलिए पेशेंट अपने इस चीज़ को पूरा करने के लिए क्या करता है कि लंबर लॉर्डोसिस को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। लंबर लॉर्डोसिस को इंक्रीज़ करने का मतलब क्या है कि पेशेंट अपनी या तो लंबर को वो कर देता है एक्सटेंडेड पोज़ीशन में कर देता है, ठीक है, या फिर अपनी ट्रंक को फॉरवर्डली बेंड करके चलता है। ठीक है, दोनों केसेस हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ बेंड कर जाए, ठीक है, जिसमें ऑब्वियसली जब लंबर एक्सटेंशन होती है तब लंबर की लॉर्डोसिस बढ़ जाती है, ठीक है, ऐसे ही है ना? या तो ऐसे हो सकता है कि वो बेंड बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड होके चले, ठीक है, लंबर को बहुत ज़्यादा लॉर्डोटिक करके चले, या फिर क्या हो सकता है कि वो फॉरवर्डली बेंड हो जाए, ठीक है? वो कहते हैं हिप एक्सटेंसर्स। जब वो कहते हैं हिप एक्सटेंसर्स आपके वीक हो जाते हैं तब भी आपको सेम टू सेम पोस्टीरियर लर्च ही मिलता है ऑन द साइड जहाँ पर हिप एक्सटेंसर्स आपके वीक हो जाते हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं कि अगर हिप एक्सटेंसर्स में का कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो जाए, ठीक है, तो वो कहता है कि जो आपकी टर्मिनल स्विंग फेज है, ठीक है, टर्मिनल स्विंग फेज, ठीक है, जिसमें एक्चुअली आपकी स्टेप लेंथ का पता चलता है, आपकी स्ट्राइड लेंथ का पता चलता है, ये जो टर्मिनल स्विंग फेज होती है इट विल बी डिक्रीज्ड, ठीक है, इसकी जो रेंज होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि हिप एक्सटेंसर्स की वीकनेस की वजह से जो आपके इलियोटिबियल बैंड है उसके ऊपर टेंशन ज़्यादा डेवलप होना शुरू हो जाती है, वो ओवर एक्टिव होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से जो है वो आपको नी पेन प्रोड्यूस हो सकती है ऑन द लेटरल एस्पेक्ट, ठीक है। थर्ड क्या है, अगर हिप एब्डक्टर्स आपके वीक हो जाएं, ठीक है, तो जो आपकी ट्रंक है उसकी लेटरल शिफ्टिंग हो जाएगी, ठीक है, ऑन द साइड, ठीक है, ड्यूरिंग द स्टैंड फेज, ठीक है, जब भी आपकी जो लेग है वो क्या करेगी, स्विंग करेगी। वो क्या कह रहा है कि जैसे ही आपका हिप एब्डक्टर जो है वो लॉस होता है, आपकी जो pelvis है, ठीक है, वो तो ड्रॉप होगी, ठीक है। एक आपका हिप एब्डक्टर वीक हो गया राइट साइड का, ठीक है। तो आपकी लेफ्ट साइड की जो pelvis है वो क्या करना शुरू कर देगी, ड्रॉप करना शुरू कर देगी। लेकिन ट्रंक के ऊपर क्या आएगा, लेटरल बेंडिंग होगी, ठीक है। आपकी जो स्पाइन है, ठीक है, वो उस साइड के ऊपर बेंड करेगी जिस साइड की आपकी वीकनेस है। लेट्स से मैंने पहले बात की कि लेफ्ट साइड की वीकनेस है तो राइट साइड की pelvis ड्रॉप करेगी। तो वीकनेस लेफ्ट साइड की है तो आपकी लंबर स्पाइन की जो लेटरल बेंडिंग होगी वो भी क्या हो जाएगी, लेफ्ट साइड की होगी, ठीक है। वो कहता है कि लेटरल टिल्टिंग जो है pelvis लंबर स्पाइन की लेटरल टिल्टिंग तब भी होती है जब इफ देयर इज एन एंटाल्जिक हिप, ठीक है, इफ देयर इज अ एंटाल्जिक गेट, जब भी पेनफुल गेट होगा, पेनफुल हिप जॉइंट होगा, पेशेंट अब उस हिप जॉइंट के ऊपर जोर नहीं डालेगा, वेट बेयरिंग नहीं डालेगा, ठीक है, और सेकंड अपने जो दूसरा जॉइंट है, अनइन्वॉल्व जॉइंट है, उसको यूज करेगा, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि हिप एब्डक्टर्स जब भी वीक होते हैं, आपके टेंसर fascia lata जो है वो ओवरराइड कर लेता है, ठीक है, और उसकी वजह से भी आपको पेन फील हो सकती है ऑन टू द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द नी जॉइंट, ठीक है।
कहते हैं व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ मस्कुलोस्केलेटल इम्पेयरमेंट्स ऑन द गेट। ठीक है, जब भी वो कहते हैं कि मस्कुलोस्केलेटल इम्पेयरमेंट्स आती हैं, ये जो मस्कुलर इम्बैलेंसेस मैंने पढ़ाए हैं, ये डेवलप होते हैं, तो आपकी गेट के ऊपर क्या इफेक्ट आता है? ऑब्वियसली जब भी आपके मस्कुलर इम्बैलेंसेस डेवलप होंगे, आपकी जो नॉर्मल अलाइनमेंट है, नॉर्मल सिमेट्री है, वो सारी क्या हो जाएगी? डिस्टॉर्शन की तरफ जाएगी। ठीक है? फिर जो गेट साइकिल की जो नॉर्मल मैकेनिक्स है, वो भी क्या करेगी? डिस्टॉर्शन की तरफ जाएगी। ठीक हो गया? कहते हैं कि एंटाल्जी गेट का आप सबको पता है एंटाल्जी गेट क्या है? पेनफुल गेट को बोलते हैं जब भी आपका हिप जॉइंट कोई भी राइट साइड का या लेफ्ट साइड का अगर पेनफुल होता है, तो उसके ऊपर स्टेंस फेज़ बहुत शॉर्टर हो जाता है। पेशेंट बस उसको सिर्फ़ थोड़ा नैनो सेकंड्स के लिए उस साइड के हिप जॉइंट को यूज़ करता है फॉर वेट बेयरिंग। ठीक है? नाउ व्हाट आर द मेजर नर्व्स दैट आर गोइंग टू हैव इंजुरी और entrapment? ठीक है? अराउंड द हिप जॉइंट। द मोस्ट कॉमन वन इज द sciatic nerve। ठीक है, sciatic nerve आपकी compromise हो सकती है when it is going to pierce through the two heads of the piriformis muscle। piriformis muscle easily tightened हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी sciatic nerve compromise हो सकती है। सेकंड वन इज ऑब्चुरेटर नर्व। ठीक है, ऑब्चुरेटर नर्व जो है, ठीक है, वो क्या करती है कि whenever there is a pressure from the uterus or there is a damage during the labor। ठीक है, तो तब आपकी ऑब्चुरेटर नर्व के इंजर्ड होने के चांसेस हैं। और लास्ट वन इज द फेमोरल नर्व। फेमोरल नर्व तब होती है जब आपके शैफ्ट ऑफ द फीमर की फ्रैक्चर हो। ठीक है, शैफ्ट और फेमोरल शैफ्ट का फ्रैक्चर होगा। ठीक है, या वो कहता है कि डिसलोकेशन को रिड्यूस करना चाह रहे हैं। ठीक है, डिसलोकेशन, कंजेनिटल डिसलोकेशन, वो जो है जिसको हम लोग कंजेनिटल डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट कहते हैं या हिप डिस्प्लेजिया बोलते हैं। ठीक है, सीडीएच बोलते हैं। दैट इज अ डिसलोकेशन एंड व्हेनेवर वी आर गोइंग टू री रिड्यूस इट, देयर आर चांसेस कि फेमोरल नर्व क्या हो जाए, आपके डैमेज हो जाए। सो दीज थ्री पेरिफेरल नर्व्स दे आर going to be compromised around the hip joint। Now, will be the pathology? Osteoarthritis, नी जॉइंट के बाद मोस्ट कॉमनली जो है osteoarthritis, वो आपके हिप जॉइंट को इफेक्ट करता है। ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो अ वेट बेयरिंग जॉइंट, तो हिप जॉइंट को ये इफेक्ट करता है। अगर हम इसमें डिजेनरेटिव चेंजेस देख लें, तो आर्टिकुलर कार्टिलेज का ब्रेकडाउन हो जाना, आर्टिकुलर कार्टिलेज का थिन हो जाना, आर्टिकुलर कार्टिलेज का फ्रैक्चर हो जाना। ठीक है, दैट इज द डिजेनरेटिव चेंजेस। इसके अलावा कैप्सूल्स की थिकनेस हो जाना, हिप जॉइंट के जो राउंड कैप्सूल है उसकी थिकनेस आ जाना। एंड द लास्ट वन इज के along the margins of the hip joint there will be osteophyte formations। ठीक है, that are going to further impinges on the surrounding muscles। ठीक हो गया? उसके बाद वो कहता है कि जी ऑस्टियोआर्थराइटिस के अलावा कौन सी ऐसी डिजीजेस हैं जो कि हिप जॉइंट को इफेक्ट करती हैं। ठीक है, उनमें मैं आपको खुद जो बताना चाहता हूँ दैट इज एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ठीक है, इट इज एन आल्सो अदर इट इज आल्सो सीरो नेगेटिव आर्थराइटिस। ठीक है, जब आप लोग मेडिसिन वगैरह पढ़ोगे तो शायद आप लोगों को उसमें बताया जाए कि व्हाट इज सीरो नेगेटिव आर्थराइटिस। ठीक है, सीरो नेगेटिव आर्थराइटिस उसको कहते हैं जिसमें आपका रेमाटाइड फैक्टर नेगेटिव होता है, लेकिन आर्थराइटिस होता है ड्यू टू द ऑटो इम्यून इन्फेक्शंस। ठीक है, जैसे रेमाटाइड आर्थराइटिस है। ठीक है, ये भी आपके हिप जॉइंट को इफेक्ट कर सकता है। फिर आपके पास एवेस्कुलर नेक्रोसिस आ जाती है हेड की, फेमोरल हेड की। जब भी फेमोरल नेक आपकी फ्रैक्चर होती है, तो आपके फेमोरल नर्व एक्चुअली ब्लड कैरी कर रही होती है, ब्लड आर्टरी। ठीक है, और वो आर्टरी जो है वो इमर्ज होके किसके ऊपर अटैच होती है?
ऑन और वो आर्टरी सॉरी femoral neck से पास होते हुए एक्चुअली femoral हेड को सप्लाई देती है, और जब भी आपकी femoral neck का फ्रैक्चर होता है तो वो जो ब्लड सप्लाई है वो आपकी डिस्टॉर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपके पास एवेस्कुलर नेक्रोसिस के केसेस आते हैं। इसके अलावा कंजेनिटल डिसलोकेशंस ऑफ द हिप जॉइंट, एपिफिजियल प्लेट के स्लिप हो जाना, दैट इज आल्सो कॉमन कॉज of degenerative joint disease. ठीक है? Now here you are able to see on your screens the X-ray. The one on the left side, it is showing the advanced changes related to osteoarthritis. ठीक है? और जो आपका second on the right side, there is there is a hip arthroplasty that has going to perform and that has been performed. ठीक है? और इसकी मूवमेंट को बेहतर करने के लिए। ठीक है? अब वो कहता है कि पेशेंट को पेन कब-कब होती है? यूजुअली हिप जॉइंट में जो आपके पेशेंट की पेन है दैट इज़ ऑन द इंग्वाइनल एरिया, ठीक है? और अराउंड द इंग्वाइनल एरिया। देयर विल बी मोर स्टिफनेस एट द रिस्ट जॉइंट, ठीक है? और वो कहते हैं कि जो आपका कैप्सूलर जो आपकी मूवमेंट है वो ऑब्वियसली लिमिटेड हो जाएगी, और जो आपका कैप्सूल है उसकी एंड फील जो है वो आपको फर्म मिलेगी, ठीक है? उसके बाद वो कहते हैं कि इनिशियली जो मूवमेंट लिमिटेड होती है दैट इज़ यूजुअली एन इंटरनल रोटेशन, ठीक है? लेकिन जैसे-जैसे डिज़ीज़ एडवांस होती जाती है, ठीक है? हिप जो है वो आपका एडक्टेड होता जाता है, ठीक है? इसके अलावा इंटरनल रोटेशन लिमिटेड हो जाती है, और इसके अलावा आपकी एक्सटेंशन भी लिमिटेड होना शुरू हो जाती है, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियली इंटरनल रोटेशन, देन हिप एबडक्शन लॉस हो जाती है, और सेकेंडली वो क्या कहते हैं कि एक्सटेंशन जो है वो आपकी क्या होना शुरू हो जाती है, लिमिटेड होना शुरू हो जाती है, ठीक है? उसके बाद वो क्या कहते हैं कि आप एंटाल्जिक गेट आपका डेवलप हो सकता है, ठीक है? इन रिस्पॉन्स टू डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़, ठीक है? आपकी हिप एक्सटेंशन जो है वो लिमिटेड होने की वजह से आपकी लंबर के ऊपर हिप एक्सटेंशन ज़्यादा हो सकती है, ठीक है? उसके बाद वो कहता है कि जैसे आपके हिप एक्सटेंशन जो है वो रिड्यूस होती जाती है, आपकी नी की एक्सटेंशन जो है, ठीक है? वो भी क्या होती जाती है, रिड्यूस होती जाती है, ठीक है? अब ये क्या बात है कि अगर हिप एक्सटेंशन लॉस हो रहा है, ठीक है? तो नी की एक्सटेंशन को क्यों फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है? ऑब्वियसली हैमस्ट्रिंग्स जो हैं, ठीक है? वो क्या करवा रहे हैं, हिप एक्सटेंशन भी परफ़ॉर्म कर रहे हैं, हिप फ्लेक्शन भी परफ़ॉर्म कर रहे हैं, ठीक है? जैसे-जैसे हैमस्ट्रिंग मसल्स टाइट होता है, ठीक है? ये एक तो हिप एक्सटेंशन को क्या करता है, लिमिटेड करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये टू जॉइंट एक्टिंग मसल है, एट द सेम टाइम ये नी को भी फ्लेक्स कर रहा है, ठीक है? तो अगर तो यहाँ से नी की एक्सटेंशन पूरी होगी, तो वहाँ से हिप की एक्सटेंशन लॉस हो जाएगी, ठीक है? और अगर हिप की एक्सटेंशन लॉस होगी, हिप की एक्सटेंशन पूरी होगी, तो फिर नी जॉइंट की एक्सटेंशन लॉस होना शुरू हो जाएगी, ठीक है? दिस इज़ अ वाइस वर्सा कंडीशन, ठीक है? और ऑब्वियसली जब आपका डिजेनरेशन की वजह से आपका गेट पैटर्न ठीक नहीं होगा, तो आपकी पोस्चर जो है वो पुअर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? वो स्टैंडिंग का पोस्चर हो, वो सिटिंग का पोस्चर हो, वो आपका रे कम होना वो आपका पोस्चर खराब होना शुरू हो जाएगा। नाउ व्हाट आर द जॉइंट सर्जरीज दैट आर गोइंग टू हेल्प, ठीक है? वो कहते हैं कि जॉइंट सर्जरीज में आपके पास टोटल हिप आर्थ्रोप्लास्टी है, आपके पास रिसर्फेसिंग आर्थ्रोप्लास्टी है, ठीक है? आपके पास हेमी आर्थ्रोप्लास्टी है, ठीक है? आपके पास ऑस्टियोटमी है, आपके पास एक्सिजन आर्थ्रोप्लास्टी है, ठीक है? एक्सिजन आर्थ्रोप्लास्टी या रिसेक्शन आर्थ्रोप्लास्टी, आपके पास आर्थ्रोडेसिस है, फ्यूजन ऑफ द आर्टिकुलर सर्फेसेस, ठीक है? ये सारी जो हैं ये आपकी जॉइंट सर्जरीज़ पॉसिबल हो सकती हैं।
ना वो कहते हैं कि जो मेन गोल है सर्जरी का, एक तो पेन को कम किया जाए, ठीक है। दूसरा क्या है कि आपकी लोअर एक्सट्रीमिटी को इतना काबिल बनाया जाए कि वो ट्रंक की वेट बेयरिंग इजीली परफॉर्म कर सके, और सेकेंडली वो कहते हैं कि इतनी रेंज ऑफ मोशन होनी चाहिए कि वो अपने रोजमर्रा के काम परफॉर्म कर सके। ठीक हो गया। अब वो कहते हैं कि what will be the indications, ठीक है। Obviously, if there is a severe pain, if there is a severe deformity, if there is a malaligned or a non-united fracture, ठीक है, if there are bony tumors, ठीक है, और the conservative management has been failed, ठीक है, then you move towards the uh, surgical management. So what are the contraindications? The absolute contraindications and the relative. Absolute contraindications if there is a active infection around the joint, ठीक है। और वो कहता है कि सेकंड क्या है, if there is a systemic infection, ठीक है, in the body, ठीक है। if there is a systemic infection, तब भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सेकंड क्या चीज है, if there is a chronic osteomyelitic condition, ठीक है। और इसके अलावा वो कहता है कि आपके पास जो बोन है वो लॉस हो जाए काफ़ी ज़्यादा, ठीक है? आपका न्यूरोपैथिक हिप जॉइंट बन जाए, मतलब जितनी भी पेरिफेरल नर्व्स क्रॉस करी हैं हिप जॉइंट को वो सारी क्या हो जाएँ, पैथोलॉजिकली इन्वॉल्व हो जाएँ, ठीक है? तब भी आपका न्यूरोपैथिक हिप जॉइंट कहलाएगा, ठीक है? इसके अलावा वो कहता है कि शियर पैरालिसिस हो मसल्स का अराउंड द हिप जॉइंट, तब भी आपकी एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है। ऑब्वियसली बेटा जब आपके मसल्स सीवियरली पैरालाइज्ड हो जाएँगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप कोई भी इम्प्लांट डाल दो, उसको सपोर्ट ही नहीं मिलेगी, तो वो क्या हो जाएगी, सर्जरी फेल हो जाएगी, ठीक है। रिलेटिव वन इज़, ठीक है, लोकलाइज्ड इन्फेक्शन था, उसको करेक्ट कर लिया, तो अब आप इज़िली परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। अब आपके ग्लूटियस मीडियस की उतनी अच्छी फंक्शनिंग नहीं थी, ठीक है, तब भी हम ग्लूटियस मैक्सिमस को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, ग्लूटियस मीडियस को यूज़ कर लेते हैं। मतलब अगर आपका ग्लूटियस मीडियस की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम उसके स्ट्रेंथ को बेहतर करेंगे, जब स्ट्रेंथ को बेहतर कर लेंगे तो हमारी कॉन्ट्राइंडिकेशन इंडिकेशन में चेंज हो जाएगी। अब वो कहते हैं कि ऐसी कंडीशन है कि जिसको हम लोग प्रोग्रेसिव अ, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, ठीक है, मतलब स्टेप बाय स्टेप जो है वो मसल जो है वो पैरालाइज्ड हो रहे हो, ठीक है, तब भी हम क्या करते हैं, इट इज़ अ रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस, ठीक है, एक दफ़ा खत्म हो जाए प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर तो हम लोग इजीली आके परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि एसिटेबुलर अगर जो बोन का लॉस है वो बहुत ज़्यादा हो गया, वो चाहे फेमोरल हेड का बोन लॉस हो, वो चाहे एसिटेबुलम का बोन लॉस हो। फिर इसके अलावा वो कहते हैं कि ऐसे तमाम पेशेंट्स जो कि एक्सटेंसिव डेंटल वर्क जिनको रिक्वायर्ड है, सबसे पहले अलाउ किया जाता है कि आप ये डेंटल वर्क परफॉर्म करवाएँ, ठीक है? और अब वो कहते हैं कि सेकेंडली आपके पास क्या है कि यंग पेशेंट्स जो होंगे उनमें भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है जब तक कि बहुत ज़्यादा बिगड़ नहीं जाती सूरत-ए-हाल, ठीक है? सो व्हाट आर द स्टैंडर्ड सर्जिकल प्रोसीजर्स? ठीक है, ये बेटा बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसीजर्स हैं, इनको अच्छे तरीके से याद करना है। द वन इज़ द पोस्टरोलेटरल अप्रोच। वो कहते हैं ये जो पोस्टरोलेटरल अप्रोच है, ये टोटल हिप आर्थ्रोप्लास्टी के लिए फ्रीक्वेंटली यूज़ की जाती है। पोस्टरोलेटरल नेम इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा-सा पोस्टीरियर, थोड़ा-सा लेटरल जो आपका व्यू बनता है, वहाँ से आपने अंदर एंटर होना है टुवर्ड्स द हिप जॉइंट। अब वो कहते हैं कि जो ग्लूटियस मैक्सिमस मसल होता है, ठीक है, ऑन द पोस्टीरियर सरफेस उसको सेपरेट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि जो आपके एक्सटेंसर जो आपके एक्सटर्नल रोटेटर के टेंडन्स अटैच होते हैं, ठीक है, ऑन द ग्रेटर ट्रोकेंटर उनको कट कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि हमारे पास इतनी स्पेस डेवलप हो जाए कि हमें हिप जॉइंट नज़र आ जाए, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि इसमें ये इसका फ़ायदा क्या है पोस्टरोलेटरल अप्रोच का, कि इसमें आपका ग्लूटियस मीडियस जो है वो बच जाता है। ग्लूटियस मीडियस इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक्चुअली ग्लूटियस मीडियस ही पेल्विस के लेवल को कंट्रोल कर रहा है।
ठीक है। अगर पेल्विस का लेवल एक जैसा नहीं रहता, ठीक है, तो हिप जॉइंट के ऊपर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर ये जो पोस्टरोलेटरल अप्रोच है, ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि जब आपका ग्लूटियस मैक्सिमस को आपने स्प्लिट कर दिया, ग्लूटियस मैक्सिमस को स्प्लिट करके आप अंदर एंटर हुए, फिर आपने जो एक्सटर्नल रोटेटर्स थे, ठीक है, जो कि ग्रेटर ट्रोकेंटर के साथ अटैच थे, आपने उनको अ, आपने उन टेंडन्स को कट कर देना कंप्लीटली और उनको रिट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको हिप जॉइंट का कैप्सूल नज़र आएगा। आपने हिप जॉइंट के कैप्सूल को कट करना है, ठीक है, और हिप की पोस्टीरियर डिसलोकेशन करवा देंगे। कहते हैं ये पोस्टीरियर डिसलोकेशन क्यों करवाते हैं, ताकि ईज़िली जो है वो आपका फीमोरल हेड और नेक है वो क्या किया जाए, ईज़िली एक्सरसाइज़ करवा दिया जाए, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि जब आपने इसको बंद करना हो, ठीक है, तो फिर हम लोग कैप्सूल को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, जो पोस्टीरियर कैप्सूल होता है जहाँ पर हमने कट लगाया होता है, उसको हम अच्छे तरीके से उसकी सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं, ताकि जो इस प्रोसीजर के साथ जो इंस्टेबिलिटी डेवलप होती है वो कम से कम हो सके, ठीक है। तो इसी काम के लिए हम लोग पोस्टीरियर कैप्सूलोरेफाई करते हैं, ठीक है। किसी चीज़ को अच्छे तरीके से भूनना या उसको सीना अच्छे तरीके से, ठीक है। कैप्सूल को हम लोग सर अच्छे तरीके से टाइटन करना शुरू कर देते हैं। जी बेटा। सर ये 27 वाली स्लाइड दोबारा रिपीट कर देंगे काइंडली। पहला क्या स्टेप है कि हम लोगों ने ग्लूटियस मैक्सिमस जो मसल है ना उसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट का मतलब ये होता है कि बेटा जो उसके फाइबर्स की अरेंजमेंट होती है ना, हम उनको सेपरेट करते हैं, ठीक है, सिंपली सेपरेट करके जगह बनाते हैं, ठीक है, और उसके बाद आपके पास आ जाते हैं एक्सटर्नल रोटेटर मसल्स, जो कि ग्रेटर ट्रोकेंटर के साथ अटैच हो रहे होते हैं, हम उनको कट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि जब हम उनको कट कर देते हैं कंप्लीटली, तो फिर हमारे पास कैप्सूल आ जाता है सामने। हम कैप्सूल को कट करते हैं, फिर हमारे पास जॉइंट आ जाता है। जॉइंट को हम लोग पोस्टीरियर डिसलोकेशन परफॉर्म करते हैं और फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको दोबारा से कैप्सूल को टाइटन कर देते हैं पोस्टीरियरली, क्योंकि इसके साथ जो है वो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इंस्टेबिलिटी के, ठीक है। तो इसलिए कैप्सूलर एफआई बहुत ज़रूरी है। और सेकेंडली वो कहता है कि इसका फ़ायदा क्या है कि इसमें ग्लूटियस मीडियस जो है वो कट नहीं होता, जिसकी वजह से इसमें पेशेंट जो है वो अर्ली जो है पोस्ट ऑपरेटिव मोबिलाइजेशन स्टार्ट कर सकता है, ठीक है, अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव मोबिलाइजेशन। अब वो कहता है कि द नेक्स्ट अप्रोच इज द लेटरल अप्रोच, ठीक है। वो कहते हैं लेटरल अप्रोच में क्या होता है कि हम टेंसर fascia लेटा को डिवाइड करते हैं, जैसे हमने पहले स्प्लिट किया था ग्लूटियस मैक्सिमस को। टेंसर fascia लेटा को भी हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि हम जो ग्लूटियस मीडियस है, ठीक है, और वास्टस लेटरालिस है, ठीक है, उनको भी हम लोग स्प्लिट करते हैं, ठीक है, ग्लूटियस मीडियस को भी और वास्टस लेटरालिस को भी। अब वो कहते हैं क्योंकि ये लेटरल साइड है, ठीक है, तो इसमें सबसे कम इसमें आप ग्लूटियस मीडियस जरूर क्या होगा, स्प्लिट होगा, जरूर कट होगा, ठीक है। अब वो कहते हैं कि जो ग्लूटियस मीडियस है, ठीक मीडियस है, उसको तो आपने स्प्लिट कर दिया। जो ग्लूटियस मिनिमस होता है हम उसको क्या करते हैं, सिंपली कट कर देते हैं, ठीक है, फ्रॉम इट्स इंसर्शन साइट, और उसको हम लोग पकड़ के रखते हैं, ठीक है, और बाद में आफ्टर डेट सर्जरी हम लोग उसको क्या कर देते हैं, रीअटैच कर देते हैं, ठीक हो गया। सो दिस इज द लेटरल अप्रोच, ठीक है। इसमें हमें हमारे पास डायरेक्ट रसाई है टुवर्ड्स द हिप जॉइंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें वो कहते हैं कि यहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा थिक मसल्स नहीं हैं, ठीक है? यहाँ पे बहुत, एक तो आपके पास मतलब लिमिटेड मसल्स हैं, ठीक है? लेटरल एस्पेक्ट के ऊपर, ठीक है? और कुछ मसल्स तो ऐसे हैं जो शॉर्ट मसल्स के तौर पर एक्ट होते हैं, ठीक है? द नेक्स्ट वन इज़ एंट्रोलेटरल अप्रोच। एंट्रोलेटरल अप्रोच क्या है? वो कहते हैं कि इस अप्रोच को डेवलप किया गया था प्रीवियसली ऑन द लेटरल एस्पेक्ट।
अब उसमें वो क्या कहता है, वो कहते हैं टोटल हिप आर्थ्रोप्लास्टी के लिए इस अप्रोच को यूज किया जाता था और इसको इस्तेमाल किया गया। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें वो कहता है कि आपकी एंटीरियर और लेटरल जो साइड होती है, ठीक है, उसको यूज किया जाता है। ठीक है, और उसमें वो कहता है कि ग्लूटियस मिनिमस को, ठीक है, ग्लूटियस मीडियस को, ठीक है, टेंसर fasciae lata को, इलियोसॉस को, ठीक है, और रेक्टस femoris को और वेस्टस लेटरलिस को। ठीक है, इन सबको हम लोग स्प्लिट करते हैं। ठीक है, एक एक्सटेंसिव सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है इसके स्प्लिट करने की वजह से, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ मसल्स हैं और नंबर ऑफ मसल्स को हम लोग स्प्लिट करें तो ऑब्वियसली इट विल बी रिजल्ट इन एक्सटेंसिव सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि इसमें हम लोग जो ट्रोकेंटर होता है ना, उसको हम लोग कट कर देते हैं। ठीक है, ट्रोकेंटर को कट इसलिए करते हैं ताकि हमें इतनी स्पेस मिल सके फ्रॉम द एंट्रोलेटरल अप्रोच कि हम लोग इजीली फिमोरल हेड को और फिमोरल नेक को फ्रैक्चर कर सकें। ठीक है, ये हमें तभी मिलेगी जब हमारा ग्रेटर ट्रोकेंटर जो है उसको कट किया जाएगा। ठीक है, और जैसे ही वो जो आपका फिमोरल हेड है और नेक के जब आप उसकी डिसलोकेशन करवाते हो, तो फिर बाद में आप वहाँ पे इम्प्लांट डालते हो और इम्प्लांट डालने के बाद आपने जो अ, अ, ये जो ट्रोकेंटर कट किया होता है या जो काटा होता है फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइड, वहां पर हम टेंशन वाइड बायरिंग करवाते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है कि जी ये तो है स्टैंडर्ड सर्जिकल प्रोसीजर्स, फिर आपके पास आ जाता है मिनिमली इन्वेसिव सर्जरीज। ठीक है, मिनिमल इन्वेसिव सर्जरीज और स्टैंडर्ड सर्जिकल प्रोसीजर्स में डिफरेंट है। ऑब्वियसली मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी लेस पेनफुल है। ठीक है, इसमें लेस सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज हैं, लेस सॉफ्ट टिश्यूज को कट किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो पोस्ट ऑपरेटिव मोबिलाइजेशन है वो अर्ली हो जाती है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि मिनिमल इन्वेसिव सर्जरीज के कुछ करेक्टर्स हैं। ठीक है, वो कौन कौन से करेक्टर्स हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि इसके में आपका जो कट है वो 10 सेंटीमीटर से अगर कम का होगा तो हम लोग उसको बोलते हैं कि दैट इज अ मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि इसमें दो किस्म की आ सकती हैं, सिंगल इंसिजन सर्जरी आ सकती है और डबल इंसिजन सर्जरी। ठीक है, वो कहते हैं जो सिंगल इंसिजन है, ठीक है, उसमें वो कहते हैं कि यूजुअली पोस्टीरियर एंटीरियर अप्रोचेस यूज होती हैं और कभी कभी लेटरल अप्रोच भी यूज हो जाती है। जो टू इंसिजन हैं, ठीक है, उनमें वो कहते हैं कि आपके पास 4 से 5 सेंटीमीटर की हर इंसिजन होनी चाहिए। ठीक है, वो कहते हैं इसमें दो किस्म की इंसिजन की जाती हैं, एक एंटीरियर इंसिजन इंसिजन करते हैं ताकि एसिटेबुलर कंपोनेंट को रिप्लेस किया जाए, और एक कौन सा करते हैं, पोस्टीरियर को, ठीक है, पोस्टीरियर साइड से इंसिजन क्रॉस करते हैं ताकि हमारा फिमोरल कंपोनेंट हम उसको रिप्लेस कर सकें। ठीक हो गया बेटा, बच्चों यहाँ तक समझ आ गई है? What is the difference between the single incision surgery and the double incision surgery? ठीक है, which are the types of minimal invasive surgeries? ठीक है, तो डिफरेंस का पता चल गया कि एंटीरियर इंसिजन क्यों कर रहे हैं और पोस्टीरियर इंसिजन क्यों कर रहे हैं। ठीक है, एक को एसिटेबुलर कंपोनेंट की रिप्लेसमेंट के लिए और एक को फिमोरल कंपोनेंट की रिप्लेसमेंट के लिए। ठीक है, अब वो कहते हैं कि वो दो स्लाइड्स रहते हैं बच्चों। ठीक है, वो कहते हैं कि इसमें भी आपके पास डिफरेंट अप्रोचेज हैं, पोस्टीरियर अप्रोचेज हैं, एंटीरियर अप्रोच है और लेटरल अप्रोच है मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी में। वो कहते हैं कि अगर आप तो पोस्टीरियर अप्रोच यूज करें तो इसमें 7 to 10 सेंटीमीटर का क्या लगाते हैं, इंसिजन लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ग्लूटियस मीडियस और पिरिफॉर्मिस मसल है, इसके दरमियान यूजुअली ये इंसिजन लगाया जाता है। ठीक है, और इनको सेपरेट किया जाता है। ठीक है, और हिप जॉइंट तक पहुंचे जाता है। इसमें जो हिप एब्डक्टर मसल्स हैं उनका अ, बस ठीक है कि आपके जो इंटीरियर अप्रोच में जो आपके 10 सेंटीमीटर का इंसिजन लगता है। ठीक है, सही है, और वो कहते हैं कि ये जो इंसिजन है ये एंटीरियर इलियक स्पाइन से स्टार्ट होके, ठीक है, कहाँ तक जाता है, टूवर्ड्स द
थाई तक जाता है 10 सेंटीमीटर का। स्टार्ट AS IS से करना है आपने, जितना भी जाए नीचे 10 सेंटीमीटर का रखना है इस इंसिजन को, ठीक है। इसमें वो कहते हैं कि जो सार्टोरियस मसल्स हैं और रेक्टस फेमोरस मसल्स हैं, ठीक है, और वो जो आपका टेंसर फेशिया लेटा है, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि इनके अलावा तमाम मसल्स को क्या किया जाता है, इंटेक्ट किया जाता है, इंटेक्ट रखा जाता है, ठीक है। फिर आपके पास आ जाती है लेटरल अप्रोच, ठीक है। लेटरल अप्रोच जो है वो कहता है कि सबसे कम यूज की जाती है मिनिमल इन्वेसिव सर्जरीज में, ठीक है। वो कहते हैं कि जो आपका ग्लूटियस मीडियस है लेटरल अप्रोच से, उसको क्या किया जाता है, स्प्लिट किया जाता है, जिसकी वजह से आपका जो एबडक्टर मैकेनिज्म है वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि डिपेंड ये करता होता है कि वेदर वी आर गोइंग टू यूज एंटीरियर अप्रोच, वेदर वी आर गोइंग टू इम्प्रूव यूज पोस्टीरियर, वेदर वी आर गोइंग टू यूज द पोस्टीरियर लेटरल अप्रोच। ये सारा डिपेंड कर रहा होता है कि पेशेंट की अपनी कंडीशन क्या है और जो सर्जन है उसकी वो क्या रिक्वायर कर रहा है, ठीक है, वो क्या देखना चाह रहा है, कि उसका फोकस किस चीज के ऊपर। So all of these things depends either on the patient or whether on the individual, ठीक है, whether on the surgeon as well, ठीक है। So this is all about the surgeries, ठीक है, of surgeries occurring at the hip joint, ठीक है। जी बच्चों, any questions? जी बच्चों। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा एक क्वेश्चन है कि डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज, डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज हो तो उसकी वजह से एवीएन हो सकता है, एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप जॉइंट। डीजेनरेशन अगर इतनी ज्यादा एक्सटेंसिव हो जाए, ठीक है, कि आपकी जो सब कॉन्ड्रल बोन है या आपकी जो नेक है, फेमोरल नेक है, अगर उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है तो देयर माइट बी अ चांस कि उसकी वजह से वेस्कुलर नेक्रोसिस हो जाए, चांसेस हैं, ठीक इट है इज सर, थैंक पॉसिबल। यू सर। आपने असाइनमेंट वगैरह नहीं लेनी? बेटा नो असाइनमेंट्स नहीं लेनी, ठीक है। आप लोगों का क्विज ही होगा और आप लोगों के ओरल टेस्ट होगा और क्लास पार्टिसिपेशन होगी, ये आप लोगों की सेशनल है, ठीक है। इंशाल्लाह ताला जनवरी तक आप लोगों के जनवरी के फर्स्ट वीक तक 5%। और सर हमारे फाइनल्स कब होंगे? फाइनल्स बेटा होपफुली फरवरी के फर्स्ट वीक में या मिड में। और वो फाइनल वाइवा होगा या यूनिवर्सिटी एग्जाम? डिपेंड करता है कि अगर गवर्नमेंट अलाउ कर देती है तो हो सकता है कि वो ऑन कैंपस हो जाए। ठीक है सर, थैंक सर यू। ये अभी आप कुछ बता रहे थे ज्यादा ओरल की। एक मिनट बेटा, क्या आप बता रहे थे? शुमाइला बेटा पूछ रही। यस सर, मैं ये पूछ रही थी कि 25% ओरल टेस्ट की बहुत ज्यादा वेटेज है। हाँ जी बेटा। सर आप उसकी इस जगह कोई असाइनमेंट ले लें, थोड़ा सर आप परसेंटेज असाइनमेंट दे कम। दें, बाकी टीचर्स ने भी असाइनमेंट्स दी हैं। सारे टीचर्स Yes, sir, असाइनमेंट please. और उन्होंने ओरल बेटा टेस्ट की 10 to 15% रखी है वेटेज। बेटा इट हैज बीन डिसाइडेड, ठीक है, मैं बड़ी देर से आपको बता चुका हूँ, ठीक है, कि आपका सर ओरल लेकिन टेस्ट सर आप असाइनमेंट ले लें वाइवा के। सर सर इतने ज्यादा 25% ओरल टेस्ट बहुत ज्यादा इक्वल टू मिड रख दिया आपने, और बाकी टीचर्स सर 20% की असाइनमेंट्स दे रहे हैं। सर लास्ट टाइम आपने स्पोर्ट्स में 30 की दी थी, एटलीस्ट सर एक असाइनमेंट तो देना हमें थेरा में भी। क्योंकि बेटा हमारा आपको अब पता है क्विज भी अच्छा नहीं हुआ था सर, उसको भी आपने नहीं कंसिडर किया, तो प्लीज सर इसको कर लें। सर सर आपने सिलेबस सारा में कुछ ओरल ही रख मैं यस दिया। सर आपने क्विज का भी नहीं बेटा किया। इट हैज बीन डिसाइडेड, आप लोगों की क्लास पार्टिसिपेशन है ना आसान सी, सर 5% है, ठीक है। वो भी सो आपने ओरल टेस्ट सर ही अब लेना है, देखिए उसमें भी आपका हमें वाइवा पता है। हमारा 23 को है, 22 को हमारा पेशेंट सेफ्टी 2 का फाइनल है, और फिर सर 26 को और सर हमारे 24 को। सर बेटे प्लीज तो वेटेज का कम नहीं कर होता। दें। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं इतना सब तैयार नहीं ये होते मेरी बात सुनिए,
बेटा एक ही दिन में तो नहीं सारे पेपर हो जाने ऑब्वियसली। ये एक ही दिन में मैंने हर बच्चे को तो नहीं सुन लेना। सर आपकी ठीक है, वेटेज बहुत टाइम ज्यादा होता है है आपके पास। सर, वेटेज कम कर दें, बेटा मुझे एक ऐसा असाइनमेंट दे दें सर प्लीज। ये सर थोड़ी सी सारे कम टीचर्स करके सर असाइनमेंट असाइनमेंट देते हैं। चाहिए। अच्छा एक्सक्यूज मी बेटा इट सर, हैज बीन डिसाइडेड। ठीक है, कोई आपका टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बताओ। लेकिन सर ये सर आप ओरल टेस्ट फास्ट अल्फाबेटिकली में होगा तो या प्रोजेक्ट फिर टाइम पे देना। पिछली तरह सारा दिन बैठना पड़ेगा वेट में? बेटा मैं सर पूछ रहा हूँ कि सर अगर आपका सेक्शन टॉपिक का से रिलेटेड कोई है तो बताएं। सर तो सेक्शन हमारा ए का सब्जेक्ट कितने सर का अभी होगा? आप ना थोड़ी देर पहले सर सेक्शन कुछ ए का बोल रहे थे जनवरी के स्टार्ट में। सर ये क्या बता रहे थे आप? बीच में वो इंटरप्ट हो गए थे बेटा जरा। जनवरी के स्टार्ट में सेशनल आपके हो जाएंगे कंप्लीट, और फरवरी के स्टार्ट में के मिड में आपका फाइनल होगा। ठीक है बेटा। जी सर। सर एक और चीज सर, अगर एग्जाम है उस टाइम पे आपके वाइवा की स्लॉट के टाइम पे, तो सर हम पहले आके दे दें या बाद में आके दे दें? क्योंकि पहले सर अगर 24 पॉसिबल हो तो पहले दे दीजिएगा, नहीं तो बाद में आके दे दीजिएगा। ठीक है। सर दो मीन दो सेक्शंस है तो उनके एक दिन में हो जाएगा। बेटा एक दिन में नहीं, देयर विल बी 2 स्लॉट्स, वन इन द आफ्टरनून एंड वन इन द इवनिंग। ठीक है। सो एक सेक्शन एक के लिए होगी, एक सेक्शन बी के लिए होगी, और इट विल बी कंटिन्यू फॉर 3 to 4 डेज। ठीक है। उसमें ग्रुप्स आपको आज इंशाल्लाह ताला मेल आ जाएगी। एंड सेकेंडली आप लोगों के लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं यूट्यूब के ऊपर ना, तो मेरे ही आईडी को, जो मेरा ईमेल आईडी है, आप उससे सर्च कर लें, नहीं तो मैं इंशाल्लाह ताला लिंक आप लोगों को भेज दूंगा। ठीक है, लेक्चर्स के यूट्यूब ठीक है चैनल सर, पर। थैंक ठीक है। यू। सर अगर ये 3 सर से 4 एक दिन तक लास्ट चीज चलेगा, जो और। इसके दरमियान में हमारे बाकी ओरल टेस्ट होंगे वो हम कैसे देंगे? बेटा ऑब्वियसली यहाँ पे तो ऐसा ही होता है ना कि आप लोगों के टेस्ट इसी तरीके से ओवरलैप कर रहे होते हैं। ठीक है। ऑब्वियसली आपका इस सेमेस्टर 4 to 5 मंथ्स का होता है। अब वो एनुअल सिस्टम तो नहीं ना हो सकता, आप लोगों के सेशनल्स भी लेने हैं। ठीक है। सिर्फ एक पेपर पे तो नहीं आप लोगों को डिसाइड कर दिया जाता कि जी आप पास हैं कि फेल हैं। ये तो आप लोगों की फैसिलिटेशन होती है ना कि सेशनल्स हैं, यू हैव टू मेक इट, यू हैव टू प्रोग्रेसिवली मेक इट बेटर। आप पहले सेशनल में नहीं अच्छा अटेम्प्ट करते, आप सेकंड में अच्छा अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप बेहतर होते जाते हो। अगर आपका एक ही दफा पेपर ले लिया जाए तो उसमें हमारे लिए ज़्यादा आसानी है। ठीक है। आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा कि उसको पास ही पास करना है। ठीक है। क्योंकि उसमें जो फेल होगा ऑब्वियसली वो फेल हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास बेटा टाइम होता है, आप इजीली उसको परफॉर्म करो। देखो आपका क्विज कब हुआ है? ठीक है। 1 महीना हो गया। आप लोगों को पता है मैंने क्विज में क्या किया है? हर बच्चे को पता होता है मैंने क्विज में क्या किया है। ठीक है। मैंने आप लोगों को आके बताया भी है कि जी आप लोगों का क्विज कैसा-कैसा हुआ है, या आप लोगों को खुद भी पता था कि जी क्या कैसा हमारा क्विज हुआ है। तो आप लोग क्या करो, पढ़ना तो शुरू करो, उसको समझना तो शुरू करो। आप बगैर पढ़े तो नहीं बेटा पास कर सकते हो। ठीक सर है। सो यू हैव टू मेक इट सर द पढ़ राइट रहे हैं, पढ़ प्रोसीजर। तो रहे हैं सर, सिलेबस भी बहुत है और सब्जेक्ट भी और भी तो हैं। 8 हम 9 सब्जेक्ट बेटा पढ़ रहे हैं इस टाइम तो। ऑब्वियसली जब आप फैमिली में और भी जब काम होते हैं। जब आप ये कोरोना अब हमारी वजह से तो नहीं है, अब हमसे बदला तो ना ले सर जी। बेटा कोरोना किसी के ऊपर भी किसी की वजह से नहीं आया। ठीक है। बात सिर्फ ये है कि जो भी बात है आप लोगों के पास जितना भी है, आप लोग छोटी नर्सरी या प्रेप के बच्चे तो नहीं ना हो कि आप लोगों को थोड़ा-थोड़ा दिया जाए कि 1 चैप्टर पढ़ लो, 2 चैप्टर पढ़ लें। बेटा आप लोगों ने डॉक्टर्स बनना है। ठीक है? सो स्टडीज़ तो करनी पड़ती हैं। ठीक है? जो ऑब्वियसली सर रात से दिन से रात तक मेहनत करता है, अल्लाह ताला उसको उतना ही अच्छा फल देता है। ठीक है? वो चाहे नंबर्स की सूरत में हो, ठीक है? वो चाहे उसकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के उसमें हो। ठीक है? अल्लाह ताला उसको अच्छा ही देगा। ट्राई टू सर अंडरस्टैंड दिस। ये तो बहुत छोटी-छोटी सी बातें हैं, सर इतना नहीं है, 14 इतना कर लेक्चर दो, इतना नहीं है, उतना कर दो। एक्सक्लूड कर दें प्लीज। बेटा सर 14 मैंने एक लेक्चर इज़ रिक्वेस्ट करनी थी। इंक्लूडेड। सर आपने सर पहली सर क्लास में प्लीज बोला था माना कि करें, हम डिसजॉइंट आपसे में सिर्फ रिक्वेस्ट 12 और करते हैं आप। 13 है, तो प्लीज बेटा सर आप मैंने ऐसी 14 कोई भी लेक्चर बात नहीं रहने की। दें। मैंने आपको कहा था रिस्ट जॉइंट इज़ इंक्लूडेड, रिस्ट जॉइंट में आपके 14th लेक्चर इंक्लूडेड है। ठीक है?
सर जब हमने पहले सर मेल किया था उसमें नहीं था, बाद में किसी बच्चे ने क्या आपको नहीं मेल था? करके पूछा, आपने कहा इंक्लूडेड है। मैंने कब कहा कि 14 लेक्चर नहीं है? मैंने बेटा रेस्ट की बात की सर थी। आपने क्लास मैंने रिस्ट की बात की है, मैंने स्पाइन की बात की है, मैंने तो लेक्चर्स किसी को कहा ही नहीं लेक्चर ये है या नहीं है। किसी ने पूछा है कि लेक्चर 14 इंक्लूडेड है या नहीं है, तो मैंने कहा यस इट इज इंक्लूडेड। क्योंकि शायद आपको यही नहीं समझ आ रही कि लेसिरेशन मैंने किसकी पढ़ाई है, रिस्ट फ्लेक्सर टेंडेंस की पढ़ाई है, रिस्ट एक्सटेंसर टेंडेंस की पढ़ाई है, तो ऑब्वियसली इट इज इंक्लूडेड इन द रिस्ट जॉइंट। ठीक है, ये तो नहीं एक्सक्लूड हो सकते ना। मैं एक जॉइंट पढ़ा रहा हूँ, उसके अराउंड में जो मसल्स हैं ऑब्वियसली दे आर इंक्लूडेड। पूछने वाली तो बात ही नहीं थी बेटा। सर जी सर या तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, या तो सर क्विज दोबारा ले लें, क्योंकि क्विज सबका ही बुरा हुआ है। ऊपर से आपने सर 25% वेटेज रखी हुई है वाइवा की। सर कहीं से तो हमें थोड़ा सा तो रिलैक्सेशन दे दें, या क्विज यस बार सर ले लें प्लीज, सर। ये क्विज का सर लाजमी काम है चलो फिर सर, क्विज दोबारा का चलो कर प्लीज। ठीक लें, है, 10 चलो पॉइंट सेलेक्ट कर ये लें। उसामा, चलो मैं एक दफा ये कंसिडर कर सकता हूँ, ठीक है, कि मैं क्विज आप लोगों का एक दोबारा ले लूं, रीटेक ले लूं क्विज का सब बच्चों का। ठीक है, रीटेक नहीं थैंक यू मतलब सो थैंक्स वो मच सर, सर। थैंक एक यू सो सेकंड क्विज हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो बेस्ट होगा वो कंसीडर होगा, क्योंकि सर हमारी इतनी जो ज्यादा हो रही है बेस्ट सर, होगा, हम जो बेस्ट होगा वो लोग कंसिडर हो जाए। थैंक यू सो मच ठीक है, सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू ठीक है, सर। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। सर जी बेटा। आपने हमारी सेक्शन बी कल क्लास नहीं लेनी? बेटा मुझे ना सॉरी, सेक्शन बी को गलत चला गया था। आई हैव टू टेक योर क्लास टुमारो इंशाल्लाह। ओके सर, ओके सर जी। सर जी उंजला बेटा। सर मैंने आपको मेल की थी, तो सर आप काइंडली मुझे भी बता दें कि आप मेरी हाँ जी मेल का मैं रिप्लाई कर देंगे भी। मैं कर देता हूँ अभी। जी सर सर, वो मैं आप नेक्स्ट जी रिकॉर्डिंग कब तक अपलोड कर देंगे यूट्यूब पर? बेटा अपलोड हो रही हैं, आप लोग ना कोशिश करो amar.akbar से यूट्यूब को वो करने की, फाइंड आउट करने की। मैंने पब्लिक की हुई हैं, अगर तो मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है, तो नहीं तो मुझे एक या दो बच्चे बता दें कि सर नहीं मिल रही, तो फिर मैं आप लोगों को लिंक भेज देता हूँ। वैसे मैं सर आप भेज भी लिंक देता भेजें, हूँ ज्यादा लिंक। बेहतर है, तैयारी करने में मिल आसानी जाएंगे होगी। सर, हमने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। सर लिंक सर आप ठीक है, एलएमएस पे डाल दें किसी एक वीडियो का, फिर हम जी वहाँ मैं से कर देख। देता हूँ। सर मुझे ये कहना था कि लिस्ट कब तक आप हमें शेयर कर देंगे, जो टेस्ट होना है। बेटा अभी तो मैं यूट्यूब वीडियोस भी बड़ी मुश्किल से, आपके सोच है इट विल टेक अ लॉट मोर टाइम टू अपलोड इट। ठीक है, तो अभी तो 13 लेक्चर्स की किए हैं, इंशाल्लाह हम्म, ताला आज नहीं तो कल सुबह तक डेफिनेटली हो जाएंगी ठीक है, लेक्चर थैंक यू लिस्ट सर। अपलोड। तो 23 कंफर्म है? 23 कंफर्म है, वाइवा सेक्शन ए का 23 को स्टार्ट हो रहा है। जी जी 23 कंफर्म है इंशाल्लाह ताला। और सेक्शन बी के भी सर बीच में ही होंगे मिक्स सब? जी बेटा that will be 2 slots, one in the ओके सर, afternoon and one in the evening। आफ्टरनून का जो सेशन होगा वो सेक्शन ए का होगा, जो इवनिंग का होगा वो सेक्शन बी का हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। ओके बच्चों, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।